Welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your EVS chapter number 6, and the name of your chapter number 6 is Natural Resources. Okay. In this chapter, my dear student, we all are going to see about natural resources. What is the meaning of natural resources? The resources which we get from nature. Okay. They are not man-made. Okay. So in this chapter, my dear student, what concept overview we are going to discuss? Natural resources, and as well as we are also going to see man-made resources, types of resources, how we are going to conserve these resources, conservation of resources, pollution of nation, wealth, and 3 Rs. Okay, so all these things we are going to discuss in this chapter. Okay, and now what curricular goals we are going to see? Understand natural resources like air, water, soil, sunlight. Okay, so we are going to understand what is the meaning of natural resources, learn ways to use and conserve those resources, then recognize the importance of clean environment. Okay, so come with me and let's see the chapter. So first of all, my dear student, we are going to see what is the meaning of natural resources. Okay, see, resources which are given to us by nature are called natural resources. Simple. Natural resources means those resources which Mother Nature has given to human beings. They are called natural resources. And what are the natural resources? Air, water, petroleum, coal, forest, and wildlife are natural resources. So these all are the example of natural resources. All these are available to human being for use, and all these natural resources are available for us. Okay, for us, for human beings to use them. Okay, now what is the concept of man-made resources? Let's see. Resources which are made by men. Okay, so the resources which is completely made by human beings, like bricks, cloths, steel, plastic, rubber, paper, etc. They all comes under the category of your man-made resources. Okay, all man-made resources are made from natural resources. See, man-made resources का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि पूरा का पूरा मैंस ने बनाया है. मैन ने उन्हें बनाया है 100%, लेकिन जो रिसोर्सेज उसमें यूज किए हैं ना, वो रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, वो सारे के सारे जो हमारे रिसोर्सेज है ना, वो सारे हमारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, सो वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली. इसीलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए. Now, my dear student, we are going to see how many types of resources, means types of resources. So the first type of resource is air. Okay, so what is the meaning of air? Let's see. Air. All living things cannot live without air. We all live in things. Plants, animals, and human beings. We can't survive without air. Oxygen in the air is needed to stay alive for all the living things on this planet. ओके, एयर में ऑक्सीजन नाम का एक गैस होता है, वही गैस हम लोग इनहेल करते हैं, उसी की वजह से हम सारे लिविंग बींग्स क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज वाटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर? लेट्स सी. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए यानी एयर चाहिए, वैसे ही हमें जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए. ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. हम सारे लिविंग बींग्स को, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, या हम ह्यूमन बींग्स हो, हम सब लोगों को पानी चाहिए. ठीक है, 71% ऑफ वाटर इज कवर्ड विथ वाटर, बट ऑल ऑफ इट इज नॉट पोटेबल. देखिए, हमारा प्लेनेट अर्थ 100% में से 71% क्या है, पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा पानी जो 71% है, हम पी नहीं सकते हैं. ठीक है, ओनली 3% ऑफ इट इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं. ठीक है, अदर देन ड्रिंकिंग वाटर इज नीडेड फॉर मेनी अदर पर्पसेस ऑल्सो. पानी पीने के अलावा बहुत सारे काम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, टू ट्रेवल, टू वॉश थिंग्स एंड टू कुक फूड एक्सेट्रा. तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए, सारी चीजों में हमें पानी की जरूरत पड़ती है. सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन से दिस इज अ पिक्चर, ओके, इन विच वी ऑल लिविंग बीइंग्स आर यूजिंग व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सी, ट्रीज, animals, okay, flowers, fruits, water, soil, birds, hills, air, sun. Okay, so all these are our natural resources. Okay, and we all living beings, either they are humans or either they are plants. Okay, and either we human beings need our air, our sun, our soil, and our water resources. Okay, now the next resource is our soil resource. Let's see. Soil, it is the uppermost layer of the earth crust. Plants need soil to grow. Soil क्या होता है?
ये जो हमारी जमीन है ना, ग्राउंड, उसका जो सबसे ऊपर वाला तह है, ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो सॉइल कहलाती है, ठीक है। और सॉइल प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल्स नहीं होंगे तो कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट्स। ओके, देखिए, प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड। फॉरेस्ट आर एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्रीज। द ट्रीज प्रोवाइड मैनी थिंग्स एंड मेक एयर फ्रेश, ठीक है। प्लांट्स हम लोगों को खाना देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जब बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं तो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, तो ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। सबसे जरूरी चीज वो ये देती है कि हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखती हैं, वो हमारे एयर को प्यूरिफाई करती हैं, ठीक है। दे कूल द एयर, होल्ड द सॉइल एंड कॉज रेनफॉल। और अपार्ट फ्रॉम making our environment neat and clean, plants also make the air cool, and as well as they hold the soil and cause rainfall. Due to the presence of trees, rainfall occur on planet earth, okay. They also help us to make many useful things like clothes, furniture, medicine, paper products, etc, ठीक है। इन सब के अलावा ट्रीज हमारी बहुत हेल्प करती हैं कपड़े बनाने में, फर्नीचर्स, मेडिसिन वगैरह बनाने में, ठीक है। नाउ हियर ब्रेन ब्लिट्स, लेट्स सी what are natural resources. So what are natural resources? You are going to give the answer to this question. Why are these natural resources essential? What are man-made resources and how soil is important? ठीक है, तो ये चारों का आंसर आप देखेंगे कि अभी तक आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। Now conservation of resources, in what way we are going to conserve our resources, okay. So conservation of natural resources is must. They are available in limited quantity. We should use them properly and not waste them. We have to preserve them for our future generation so that they can live happily, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना बहुत जरूरी है और ये हम ह्यूमंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर ये खत्म हो गए ना तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। पोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्यूशन, देख लीजिए। Pollution is the most common problem for natural resources. Air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution must be controlled to save our natural resources. Waste should not be thrown in open. We should use eco-friendly items as far as possible. पॉल्यूशन सबसे बड़ा वजह है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से खत्म होने का, ठीक है। कई सारे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ये क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन का डिप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कभी भी वेस्ट आप ओपन एरिया में मत फेंकिए। क्यों नहीं फेंकना है, अगर आप ओपन एरिया में फेंकोगे तो वो क्या होगा, वो सॉइल पॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ वो आपका एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा, ठीक है। और जितना हो सके, जितना पॉसिबल हम लोग को इको फ्रेंडली चीजें यूज करनी चाहिए, मींस हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें यूज करनी चाहिए, ठीक है। नाउ वेल्थ ऑफ नेशन, लेट्स सी। Trees and animals are the wealth of nation. It is necessary to conserve the plant and animals to protect the environment. हमारे नेशन का, या कह सकते हो हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ का क्या वेल्थ है, क्या उसका ट्रू खजाना है, क्या ज्वेलरी है हमारा, वो है हमारे ट्रीज और एनिमल्स। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इनको प्रोटेक्शन दें, ठीक है। प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स इज पर्टिकुलरली मोर इम्पोर्टेंट, अदरवाइज आवर फ्यूचर जनरेशन वोंट बी एबल टू सी, ठीक है। आप लोगों ने एक्सटिंक्ट एनिमल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, जो अब है ही नहीं, लेकिन बहुत से हमारे एनिमल्स ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं। अगर आपने उनका टेक केयर नहीं किया, दे आर गोइंग टू वैनिश, ठीक है। तो जो ये एनिमल्स हमारे खत्म होने वाले हैं उन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने उन एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारी अपकमिंग आने वाली जनरेशन उन्हें देख ही नहीं पाएगी, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड सेव फॉरेस्ट, ओके। नाउ प्रॉमिस योरसेल्फ, एक प्रॉमिस आप लोगों को करना है। क्या प्रॉमिस करना है, प्लांट अ सैपलिंग ऑन योर बर्थडे एवरी ईयर एंड सी इट ग्रोइंग, गिव वाटर, मैन्योर एक्सेट्रा, यू विल बी प्राउड एंड लव टू सी इट ग्रोइंग। क्या प्रॉमिस करना है, हर साल आप अपने बर्थडे पे एक छोटा सा बेबी प्लांट लगाएंगे, उसको पानी देंगे और आप देखेंगे कि जो बेबी प्लांट आपने लास्ट अपने बर्थडे पे लगाया था, इस साल बर्थडे में यानी एक साल में वो कितना बड़ा हो गया है और आप बहुत ज्यादा प्राउड फील करोगे, ठीक है। चलिए, देन एनिमल्स शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड काइंडली। जिस तरीके से हमें प्लांट्स को टेक केयर करने की जरूरत है, वैसे एनिमल्स की भी हम लोगों को क्या करना है, टेक केयर करना है उनका, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3R, लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3R। सी, द 3R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड साइकिल। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस, लेट्स सी। रिड्यूस,
We should reduce the use of natural resources. For example, we should reduce the use of petroleum products. Reduce का मतलब होता है कम करना, ठीक है? तो हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज करना चाहिए. उसके ऑल्टरनेटिव्स खोजते हैं कि उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं. जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब कम यूज कीजिए, क्योंकि पेट्रोल लिमिटेड अमाउंट में, ये फॉसिल फ्यूल्स है, ये एक बार खत्म हो गए तो हजारों साल लगेंगे इनको वापस से बनने में, ठीक है? फिर आपका आता है रीयूज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीयूज? देखिए, वी शुड रीयूज द थिंग्स. हम लोगों को चीजें बार बार इस्तेमाल करनी चाहिए. एग्जाम्पल देखिए, यूज क्लॉथ्स, नैपकिंस दैट कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिंस. देखिए, पेपर नैपकिंस की जगह पे आप लोग कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, हाथ पोंछने के लिए. क्योंकि देखिए, कपड़े आप वॉश कर सकते हो, आप उसको फिर से यूज कर सकते हो, बट नैपकिंस यू आर नॉट एबल टू रीयूज देम, ठीक है? देन थर्ड कॉन्सेप्ट है रिसाइकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइकल? देखिए, water you used to wash vegetables can be reused to water plants. ठीक है? देखिए, जिस पानी से आप अपने घर के सब्जियों को और फलों को धोते हो, वो पानी वेस्ट मत कीजिए, उस पानी को वापस से ले जाके पौधों में डाल दीजिए, ठीक है? तो हो गया ना रिसाइकल, ठीक है? चलिए, 3 Rs will surely protect our natural resources. So, my dear student, if we are thoroughly following the concept of 3R, it means what? We are going to conserve, or we are going to protect our natural resources. Okay? Here, some brain blitz question is for you all. One, how are we all creating pollution? हम human beings कैसे responsible है pollution create करने के लिए? ठीक है? Then why it is important to reduce pollution? ये क्यों important है कि आप pollution कम कीजिए? ठीक है? So truth bank देख लेते हैं, क्या है truth bank हमें यहाँ पढ़ना है. The government of India has started Project Tiger to promote tigers. ठीक है? Government of India ने Project Tiger launch किया था टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए. दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज गेटिंग रिड्यूस्ड. और ये प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, और टाइगर आपका एक एंडेंजर्ड एनिमल है. अगर इसका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो अपकमिंग जनरेशन इसे देख ही नहीं पाएगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर. Resources which are given by the nature are called natural resources. What is the meaning of natural resources? The resources which is given to us by our mother nature are called natural resources. Resources which are made by man are called man-made resources. Okay, and the resources which is constructed by human beings using natural resources, they are called as your man-made resources. Living things cannot live without air and water, and we all living things, human beings, plants and animals, cannot survive without air and water. Okay, the uppermost layer of the earth crust is soil. Now what is the meaning of soil? The uppermost layer of the earth is called as soil. Plant cool the air, hold the soil and cause rainfall. Okay, so for cooling down the air, for holding the soil, and as well as for rainfall, we need plants. Waste should not be thrown in open. Never throw your waste in open areas. 3R will surely protect our natural resources, and by following the concept of 3R means reduce, recycle and reuse. Okay, we can promote or we can conserve our natural resources. Okay, so my dear student, here our chapter ends. Just go thoroughly through this chapter and complete all the exercise portion of the chapter. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.